Hello viewers, welcome back to my channel Express Learning. So today again we are going to look at some frequently mispronounced words. Before I do that, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, so let's look at the first word. This is the first word that we have. इस word के pronunciation में आपको ध्यान रखना है कि इस word को आपको grew नहीं बोलना है. ग्रू गलत तरीका है इस वर्ड को बोलने का. इस वर्ड को हमें बोलना चाहिए ग्रू. सो द राइट वे टू प्रोनाउंस दिस वर्ड इज ग्रू. इट इज नॉट ग्रू. ग्रू गलत है, ग्रू सही है. और भी कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, उसको भी आप से मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल BLEW को आपको ब्लू नहीं बोलना है, इट इज एक्चुअली ब्लू. DREW को आपको ड्रू नहीं बोलना है, इट इज एक्चुअली ड्रू. Okay, so we should be careful with these kind of words that we get the right pronunciation of these words. So the right pronunciation of these words is grew, drew, blue. Okay, मैंने उनको अलग से नहीं लिखा है because I hope you would be able to understand with just one example. Okay, now let's look at the next word. अगर किसी के अगेंस्ट में हम पहले से ही सोच करके रखते हैं कि वो बुरा है और वो फीलिंग को एक्चुअली ये वर्ड से डिनोट किया जा सकता है. ठीक है, इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान रखना है दैट इट शुड नॉट बी प्रोनाउंस्ड एज प्रीजुडिस. अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हर्ड प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड एज प्रीजुडिस. नाउ प्रीजुडिस इज नॉट द राइट वे टू प्रोनाउंस दिस वर्ड. The right way to pronounce this word is actually prejudice. It is prejudice. It is not prejudice. So do not pronounce this word as prejudice. It is prejudice. Okay? Prejudice. One more time. Prejudice. Okay. Now this word is a very common disease that people have. ये बहुत लोगों ने सभी ने सुन रखा होगा. बहुत लोगों को ये बीमारी हो जाती है. इसके प्रोनाउंसिएशन में लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सेकंड सिलेबल है उस पे स्ट्रेस होता है, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं होता है. तो स्टूडेंट्स प्रोनाउंस करने के टाइम में फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दे देते हैं, जिसकी वजह से वो गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और इसको बोलते हैं डायबिटीज. डायबिटीज इज नॉट द राइट वे टू प्रोनाउंस दिस वर्ड. इट इज एक्चुअली डायबिटीज, नॉट डायबिटीज बट diabetes. So you can see, I hope you can hear the stress on the second syllable. जो stress है वो second syllable पे है, first पे नहीं है. तो आप इसको बोलो diabetes. It is diabetes. One more time, diabetes. It is not diabetes. ठीक है, diabetes गलत है, diabetes सही है. This is the next word. Now this word basically is another word for honesty. तो इसको honesty के लिए honesty का एक दूसरा word है ये. So this is a synonym of honesty. इस word के pronunciation में integrity आपको नहीं बोलना है. So it should not be pronounced as integrity. Integrity is not the right way to pronounce this word. A lot of the students are heard pronouncing this word as integrity. So you should pronounce this word as integrity. It is integrity. Integrity, not integrity. Integrity is incorrect. Integrity is correct. Now this word is again the name of a disease. ये एक बीमारी का नाम है और इसके pronunciation में आपको इसका ध्यान रखना है कि इसमें कोई थ साउंड नहीं है. So there is no th sound in the pronunciation of this word. तो because the way the word is spelled, जिस तरह से इसकी स्पेलिंग है, तो लोग इसको कई बार एस्थमा बोलते हैं. एस्थमा हिंदी में ठीक है, हिंदी में एस्थमा ही बोला जाता है, लेकिन when you are speaking English, you should not pronounce this word as asthma. Instead, आपको बोलना चाहिए asthma. Okay, it is asthma. It is not asthma or asthma or anything like that. It is asthma. One more time, asthma. ठीक है? So it is asthma. The next word is this. हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तो इस वर्ड का यूज़ हम करते हैं. ठीक है, अब इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में
आप देखोगे स्टूडेंट्स प्लेजर बोलते हैं या फिर कई बार प्लेजर बोलते हैं, which is of course not the right way to pronounce this word. The right way to pronounce this word is actually pleasure. So it is pleasure. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. So when you, आप जब अपने जीभ को अपने माउथ के रूफ में सटाओगे, जीभ के टिप को माउथ के रूफ में सटाओगे, तो इस तरह की आवाज आएगी, ज, है ना, जैसे जू में जो आवाज आती है, जू में जो प्रोनाउंसिएशन आती है. आपके जीभ का जो सेंटर है वो अगर आपके माउथ के रूफ को टच करेगा तो जैक में जैसी आवाज, जैक, ज, इस तरह की आवाज आएगी. ठीक है, आपको इन दोनों साउंड्स को यूज नहीं करना है यहाँ पर. ठीक है, ना आपको जीभ का जो टिप है, जीभ का जो फ्रंट पार्ट है उसको टच करना है अपने माउथ के रूफ में, ना ही आपके सेंटर को माउथ के रूफ में टच करना है. सेंटर के नीचे एकदम जो एंड में है ना, एकदम जो एंड में है आपका जीभ, उसको अगर आप टच करोगे तो जो सही प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की आप कर पाओगे. सो प्लेजर, इट इज प्लेजर. ठीक है, इट इज प्लेजर, नॉट प्लेजर, प्लेजर, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है दोनों. द राइट वे टू से दिस वर्ड इज प्लेजर, प्लेजर. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज दिस. स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रोनाउंस दिस वर्ड एज ग्रुप. ग्रुप गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको आप ग्रुप ना बोलो. द राइट वे टू से दिस वर्ड इज ग्रुप. इट इज ग्रुप. सो द वावेल इज इलोंगेटेड, ऊप होता है ना कि उप, तो ग्रुप. ठीक है, इट इज ग्रुप, नॉट ग्रुप. ठीक है. दिस इज द लास्ट वर्ड. अब देखो, जब हम साउथ की बात करते हैं और उसमें ERN लगाते हैं तो वी से सदर्न, है ना, हम बोलते हैं सदर्न, विच इज द राइट वे टू से इट. सदर्न तो सही है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है कि नॉर्थ में जब आप ERN लगा रहे हो तो उसको आप नदर्न ना बोलो. द राइट वे टू से दिस वर्ड इज नॉट नदर्न बट इट इज नॉर्दर्न. ओके, सो यू शुड बी केयरफुल नॉट टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज नदर्न बट नॉर्दर्न. इट इज नॉर्दर्न, not northern. Okay, so students, these were the 8 words that we looked at today. I hope you've been able to understand the pronunciation of all these words. Thank you very much for your time.